A single firm monopolizes the entire market for widgets and can produce at a constant average cost of AC equal to MC equal to 10 beta. So AC is equal to marginal cost is equal to 10. Originally, the firm faces a market demand curve given by Q equal to 60 minus P. Calculate profit maximizing price quantity combination. What is the firm's profit? So we'll do it through another method now. So we'll find marginal revenue beta. So what is my price? It is 60 minus Q. So what will be my total revenue? Price into quantity. So price is 60 minus Q, quantity is Q. So 60Q minus Q square. So marginal revenue will be DTR by DQ, 60 minus 2Q. And we have to equate marginal revenue to marginal cost. So it will be 60 minus 2Q equal to 10. So 2Q equal to 50. So Q equal to 25. Q will be 25. Right? Now, but what will be P? 60 minus 25 माने 35. What will be the firm's profit? तो profit निकाल लेते हैं. So what will be total revenue बेटा? यहाँ पे quantity में डालो 60 into 25 minus 25 square. So this will be 25 into 6. That means 150 minus 625. Right? Right? So just find this number. So this is going to go ahead and give you 1500 minus 625, 875. And what will be your total cost? Average cost into quantity. Average cost is 10, quantity is 25. So total cost will be 250. So what will be your profit? 875 minus 250. That will be 625. Okay. Look at second part. Now assume market demand curve shifts outward, becomes steeper and is given by this. ठीक है, तो बेटा एक बारी देख लेते हैं. अगर मैं इसको प्लॉट करती है ना, तो ये ऐसा दिखता 60 यहाँ और 60 यहाँ, प्राइस क्वांटिटी. और अगर इसको प्लॉट करेंगे तो कैसा होगा? इफ़ आई पुट पी एज 0, देखो ध्यान से, this is 45 minus 0.5 P. So if I put P as 0, Q will be 45. And if I put Q as 0, तो P आ जाएगा 45 divided by 0.5, माने this will be 90, है ना. तो प्राइस 90 हो रहा है और क्वांटिटी 45 हो रही है. So this is coming out to be your new demand curve, new curve. ठीक है, समझे बात को? दिस इज योर न्यू कर्व, 45 माइनस 0.5 P. सो नाउ यू आर गिवन Q is 45 माइनस 0.5 P. P क्या हो जाएगा बेटा? 45 माइनस Q डिवाइडेड बाई 0.5. दैट मीन्स 45 माइनस Q, 0.5 is 5 into 10, है ना. So this will be 45 minus Q into 2. So P will come out as 90 minus 2Q. ठीक है बेटा. तो अब TR क्या होगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी, माने 90 minus 2Q इंटू Q, माने 90Q minus 2Q स्क्वायर. तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? 90 माइनस 4Q. मार्जिनल कॉस्ट कितना? इसको डिफरेंशिएट करोगे ना
तो यू विल गेट 90 माइनस 4Q. मार्जिनल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 10. मार्जिनल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 10. तो MR इक्वल टू MC, तो 80 इक्वल टू 4Q, Q विल बी 20. ठीक है बेटा. P क्या हो जाएगा? P इज 90 माइनस 2Q. 90 माइनस 2 इंटू 20, 90 माइनस 40, 50. ठीक है. तो अब क्वांटिटी आ गई 20 एंड प्राइस हो गया 50. सो क्वांटिटी हैज़ रिड्यूस्ड, प्राइस हैज़ increased, right? What is firm's profit? Profit you can find on your own. I'm leaving it to you. Part C. Instead of assumption of part B, assume market demand curve being flatter. तो अब इसको प्लॉट करके देखो बेटा. तो Q is equal to 100 माइनस 2P. तो बेटा व्हेन P इज़ 0 तो Q हो जाएगा 100 माने यहाँ पे, एंड व्हेन Q इज़ 0 तो P हो जाएगा 50 माने यहाँ पे. माने मार्केट डिमांड कर्व हैज़ नाउ बिकम फ्लैटर. ठीक है. सो Q इज़ इक्वल टू 100 माइनस 2P. देखो पार्ट C. Q is equal to 100 minus 2P. So P will be 100 minus Q by 2. So beta TR will become price into quantity. 100 minus Q by 2 into Q माने 100Q minus Q square by 2. तो बेटा MR क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएट करो इसको. 100 माइनस 2Q by 2 माने 50 माइनस Q. बेटा मार्जिनल कॉस्ट कितना दिया हुआ था? 10. सो व्हाट विल बी योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी? It will be where MR is equal to MC. तो 50 माइनस Q equal to 10. तो Q will come out as 40. And what will be P? P का कर्व, what was P? 10 100 minus Q by 2. So 100 minus 40 by 2, 60 by 2 माने 30. Right? Okay. Graph the three situations. Using the result, explain why there is no supply curve for the monopolist. Okay, so we have got these three situations beta. ठीक है. So तीनों का जो MR कर्व है ना, वो मैं उनके कलर से बना रही हूँ. ध्यान से देखना. हाँ, MR कर्व उनका ट्वाइस स्लोप का होगा. ठीक है. माने कुछ ऐसा MR कर्व दिखेगा. समझ पा रहे हो? तो जो MR कर्व है, ये AR है तो ये MR है, ये AR है तो ये MR है, और ये ब्लैक वाला AR है तो ब्लैक वाला MR है. ठीक है. 3 सिचुएशंस. बेटा मार्जिनल कॉस्ट सब में 10 है. ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट है, वो मैं रेड लाइन से शो कर रही हूँ. हर एक में क्वांटिटी अलग आ रही है. पहले के केस में आपका क्वांटिटी 35 है तो प्राइस कितना आया था? सॉरी, प्राइस 35 आ रहा है और क्वांटिटी 25. तो ये जो हमारा पहला केस था वो ये है 25 और प्राइस यहाँ कहीं 35. ठीक है. प्राइस 35 आ रहा था. अच्छा, दूसरे केस में आप देख रहे हो कि प्राइस 50 आ रहा है, क्वांटिटी 20 आ रही है. थर्ड केस में प्राइस 30 आ रहा है, क्वांटिटी 40 आ रही है ना. सो इट मीन्स दैट you don't have
one supply curve, right? There is no single price quantity combination. As you fluctuate the quantity, price will fluctuate, right? So marginal cost curve price curve नहीं हो सकता. अलग अलग क्वांटिटी के लिए बेटा इनको अगर हम अलग अलग प्लॉट करें तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, ऐसा कुछ कि जब आपका ये ब्लैक वाला था ना कर्व, माने यहाँ पे 90 था, यहाँ 45 था, ये आपका AR कर्व था, माने केस 2 में की बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसका ये हाफ था और ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व था, तब आपका कॉम्बिनेशन से जो आंसर आ रहा था दैट वाज कमिंग आउट एज 20 and 50. तब यहाँ पे 20 आ रहा था और यहाँ पे 50, ठीक है. यही जब ये वाला था 60, माने थोड़ा सा कंपेरेटिवली फ्लैट कर्व था, बहुत फ्लैट नहीं, थोड़ा सा फ्लैट था, ये 60 था, ये 60 था, यहाँ 30 होना चाहिए, ये AR कर्व था, ये MR कर्व बनेगा और ये MC कर्व बनेगा 10 पे. तो हमारा रिज़ल्ट आ रहा था प्राइस 35 एंड क्वांटिटी जो आ रही थी वो 25 आ रही थी, माने हियर, और ये 35 आ रहा था, ठीक है. फिर हमने तीसरा केस प्लॉट किया जहाँ पे बेटा यहाँ पे हमारे पास 100 था और यहाँ 50, ठीक है, और ये यहाँ पे 50. ये हमारा AR बन गया, ये हमारा MR बन गया, मार्जिनल कॉस्ट अभी भी 10 ही है, और हमने देखा कि हमारा जो आंसर आया वो आ गया 30 and 40, माने यहाँ पे 40 आया और यहाँ पे 30. तो आप देख रहे हो कि एज द डिमांड कर्व, AR कर्व इज चेंजिंग, the price quantity combinations are also changing. There is no fixed price and quantity. When you lower your quantity, यहाँ पे 20 किया तो प्राइस 50 कर दिया, 25 किया तो प्राइस 35 कर दिया, 40 किया तो प्राइस 30 कर दिया. So as you lower the quantity that you sell, you increase the price at which you want to sell. And if you want to sell more quantity, यहाँ पे ज़्यादा बेचना है ना, so you reduce the price at which you want to sell. Right, so there is no unique price quantity combination, so there is no real supply curve of the monopolist, ठीक है.